کیا باقی سب کے بعد اب نواز شریف کے لیے بھی قانون سازی ہوگی؟ لندن میں نون لیگ کے اجلاس میں نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے قانون سازی پر غور کیا گیا۔ عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ نواز شریف نے اپنی ٹیم کو ہدایت کر دی کہ عمران خان کو تکنیکی بنیادوں پر ناک آؤٹ کیا جائے۔ 22 کروڑ کا ملک لیکن قانون سازی صرف چند مخصوص افراد کے لیے۔ لندن میں نون لیگ کی قیادت نے نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے لیے قانون سازی پر غور کیا۔ نااہلی کے جلد خاتمے کے منصوبے بنائے گئے۔ پاکستان کے فیصلوں کے لیے نون لیگ کی مرکزی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی۔ نواز شریف نے ہدایت کی عمران خان کو جلد از جلد تکنیکی بنیادوں پر سیاست سے آؤٹ کیا جائے۔ نون لیگ کی قیادت نے نواز شریف کو فوری پاکستان نہ جانے کا مشورہ بھی دیا۔ نواز شریف نے کہا کہ وہ انتخابی مہم خود چلائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خلاف کارروائی کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے کہا کہ اگر صدر مملکت نے استعفیٰ نہ دیا تو وفاقی کابینہ سخت فیصلے کرے گی۔ نواز شریف نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی سیاہ ترین قرار دیا۔ خود کو اور چند مخصوص لوگوں کو احتساب سے بچانے کے لیے قوانین بنانے والے شہباز شریف کو خود احتسابی یاد آ گئی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانے اور انہیں برا بھلا کہنے کی سوشل میڈیا مہم صرف شرمناک ہی نہیں، خوفناک بھی ہے۔ متکبر اور منافقانہ سیاسی نظریے کا یہی نتیجہ ہے کہ یہ کم سن ذہنوں میں زہر گھول کر بد تہذیبی کو ترویج دیتا ہے۔ آخر ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے؟ اور 25 مئی کو جو ہوا اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی وارننگ۔ پروگرام میری جنگ میں بات چیت کے دوران یہ کہا کہ عمران خان کا عوام کی طاقت پر اعتماد ہے۔ یہ بھی کہا کہ اتحادی حکومت سے اب تنگ آ چکے۔ ایم کیو ایم تو کسی صورت قبول نہیں۔ ایم کیو ایم کے علاوہ دیگر اتحادیوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم سے بات چیت کا نقصان ہو سکتا ہے، اب یہ جماعت کراچی میں کافی حد تک غیر مقبول ہو چکی۔ انہوں نے جدوجہد کی ہے، بالکل زیرو سے ایک اتنی بڑی پارٹی کھڑی کی ہے، تو وہ تو اپنے عوام کے طاقت کے اوپر ہی بلیو کریں گے۔ یہ ہماری کمٹمنٹس ہیں جو یہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ جو 25 مئی کو جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ظاہر ہے کہ وہ ہمارا ایک اہم حصہ ہے ہمارے الیکشن کا بھی۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے لوگوں سے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں وہ بھگتیں گے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو ہم نے کارروائی کریں۔ تو دیکھتے ہیں، اتحادی بھی ظاہر ہے کافی ان سے تنگ ہے۔ ایم کیو ایم کا ایک مسئلہ ہے، ایم کیو ایم اتنی پاپولر ہو گئی ہے کراچی میں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی این پی ہے، پی ہے، یہ جماعتیں جو ان کے سابق میئر کراچی وسیم اختر سندھ حکومت سے مل کر بھی اختیارات کا رونا ہی رو رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے دوران بولے کراچی والوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کراچی والوں کے حصے کی نوکریاں جعلی ڈومیسائلز بنا کر کسی اور کو دی جا رہی ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد کی سرکاری نوکریوں پر مقامی لوگوں کا حق ہے۔ بلدیاتی انتخابات سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل ہونا چاہیے۔ مردم شماری میں ایم کیو ایم کو نقصان پہنچایا گیا۔ سندھ میں میرٹ چاہتے ہیں، کوٹا سسٹم ختم کیا جائے۔ حکومت وقت کو، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو، ان سے کہوں گا اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کریں۔ اگر آپ نے ذہن بنا لیا ہے، ایک طرف تو ایگریمنٹس بھی کریں ایم کیو ایم کے ساتھ اور دوسری طرف اس قسم کی پالیسیز بنائیں، مردم شماری میں نقصان پہنچانا چاہیں ایم کیو ایم کے ووٹ بینک کو، ان ایریاز کو جہاں سے ایم کیو ایم جیتتی ہے، یا حلقہ بندیاں ایسی کریں کہ ایم کیو ایم کو نقصان پہنچے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہ کریں جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بلدیاتی حکومت کو مضبوط کرنے کا۔ 40% کوٹا جو کہ ناجائز ہے۔ ہم میرٹ چاہتے ہیں، جس طرح سے نوکریوں کی بندرباری جاری ہے حکومتوں کی طرف، جعلی ڈومیسائل بنا کر کراچی حیدرآباد کی نوکریاں یہاں کے مکینوں کے بجائے کسی اور کو دی جا رہی ہیں۔ کراچی میں بسنے والے ہر زبان بولنے والا میرا ساتھی یا کوئی زبان بولتا ہو، یہاں کی نوکریوں پہ ان کا حق ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے تحریک انصاف کی منحرف ایم پی اے عظمیٰ کاردار کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عظمیٰ کاردار نے پریس کانفرنس، ٹی وی پروگرام اور ٹویٹر کے ذریعے عثمان بزدار پر بطور وزیر اعلیٰ کرپشن کرنے کے الزام لگائے تھے۔ عثمان بزدار کی جانب سے عظمیٰ کاردار کو 50 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ 15 روز میں اگر عظمیٰ کاردار نے معافی نہ مانگی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عظمیٰ کاردار نے بھی عثمان بزدار کے قانونی نوٹس کا جواب دے دیا، کہا کوئی غلط الزام نہیں لگایا۔ عثمان بزدار اور ان کے ساتھیوں کی کرپشن کے خلاف وفاقی تحقیقاتی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ الزامات غلط ہیں تو فرا گوگی، احسن جمیل گجر ملک سے فرار کیوں ہیں؟
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने वोट का हक छीने जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया कि वोट का हक खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की तौहीन हुई। इलेक्शन कमीशन मुआफ़ी मांगे, बसूरत दीगर हद तक इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे। वोट का हक छीनने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी नाराज, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसादत से इरसाल किया गया। मौक़िफ़ अपनाया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट्स खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन के इकदाम से दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद की तौहीन हुई। नोटिस में कहा गया इलेक्शन कमीशन दोहरी शहरियत रखने वाले अफराद से माफी मांगे। माफी ना मांगने की सूरत में अदालतों में हद तक इज्जत के केसेस दायर किए जाएंगे। यजीदी पार्टियों को वोट देकर आप रोज़े क़यामत हुसैनी जमात के साथ खड़े नहीं हो सकते। मार्का करबला के हवाले से तकरीब से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि हमें जुल्म के मुकाबले का हुक्म है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में शरीयत के निफाज को रोका जाता है, इसके लिए हुक्मरानों को सिलेक्शन के जरिए लाया जाता है। की जिंदगी में जुल्म हो, जबर हो, गैरुल्लाह का निज़ाम हो, अमरियत हो और खानदानी बादशाहत हो, तो हक का रास्ता यही है कि उनको तस्लीम न करो, उसका मुकाबला करो कि आज हमारे इस मुल्क में अल्लाह का निज़ाम है या गैरुल्लाह का निज़ाम है। ये नहीं हो सकता कि आप वक़्त का यजीद को अपना हीरो बना ले, यजीदी कुव्वतों का दस्तो बाजू बने, यजीदी निज़ाम का जियाला बने, यजीद का सपोर्टर और वोटर बने, जिन्होंने आपके मुल्क को गुलाम बनाया, जिन्होंने आपके मुल्क के निज़ाम को यरगमाल बनाया। और क़यामत में आपकी ख्वाहिश यही हो कि दुनिया में मैंने वोट तो यजीद को दिया, उनके पार्टी को दिया, उनके निज़ाम को दिया, लेकिन आज मैं उस सब में खड़ा होना चाहता हूँ जो इमाम हुसैन का है। और अब कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। कराची में मानसून का असर मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से जलथल हो गया। सुपर हाईवे, कायदाबाद, डिफेंस और शिमाल मशरकी और वस्ती कराची में तेज बादोबारान से मौसम यकसर तब्दील हो गया। आज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल और ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। बारिश के बाइस सड़कों और गलियों में बारिश का पानी एक बार फिर जमा होना शुरू हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सुपर हाईवे, कायदाबाद, डिफेंस और शुमाल मशरकी कराची में बारिश हुई। कायदाबाद, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, मलीर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। तारिक रोड, बहादुराबाद में भी बारिश हुई। आज सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद 43 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल 20, ओल्ड एयरपोर्ट पर 1.9 मिलीमीटर, बेस फैसल 7, सदी टाउन 6, कोरंगी 2.2, गुलिस्तान जौहर 2 मिलीमीटर और किमाड़ी में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश और हद निगाह कम होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। बारिश के बायस सड़कों और गलियों में बारिश का पानी एक बार फिर जमा होना शुरू हो गया है। शहर में आइंदा 12 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। चौथे स्पेल का सिलसिला 9 अगस्त तक जारी रहेगा। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, जिसके नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। लाहौर के जिना अस्पताल में पानी भरने से मरीजों और तीमारदारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। कौमी स्क्वाड के तरबियती कैंप का दूसरा रोज़ भी मुतासर हुआ। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मीना बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। तेज बारिश के बायस लाहौर का जिना अस्पताल पानी से भर गया। मरीजों को अस्पताल इमरजेंसी तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। कौमी स्क्वाड के तरबियती कैंप का दूसरा रोज भी मुतासर। कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मनसूख। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, गढ़ी शाहू, जेल रोड और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुल्क भर बिलखुसूस पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मियांवाली में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कटाव में शिद्दत आ गई है। हज़ारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई, खड़ी फसलें तबाह हो गई। ठट्ठा में सजावल पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध का सैलाबी रेला कच्चे देहातों में दाखिल हो गया। रुझान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाके डूब गए। वर्ल्ड न्यूज़ की टीम मुतासरीन की आवाज़ बनने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुँच गई।
के बलाई और दरमियानी इलाकों में सैलाब से तबाही और खदशात। मियां वाली में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कटाव में शिद्दत। हजारों एकड़ अराजी दरिया बुड़, खड़ी फसलें भी तबाह होने लगी। कटाव के शिकार इलाकों में मौजू भकरा, शाहनवाज वाला और दीगर शामिल। अहले इलाका का चश्मा बैराज के करीब सुपर बंद बनाने का मुतालबा हुआ है। ठट्ठा में सजावल पुल के मुकाम पर दरियाए सिंध का सैलाबी रेला कच्चे देहातों में दाखिल हो गया है। रुझान राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाके डूब गए। मवेशी हलाक, फसलें तबाह। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। डेरा गाजी खान में हिफाजती बंद की मुरम्मत 2 हफ्ते बाद भी शुरू न हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब के करीब तमाम नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बोल न्यूज की टीम मुतासरीन की आवाज बनने के लिए मुतासरा इलाकों में पहुँच गयी। पहले तो रोदकोई के सैलाबी पानी ने मुतासर किया था, लेकिन अभी जो है दरिया सिंध का पानी बिफर गया, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और हमारे यहाँ पर जो घर हैं कच्चे में, वो कच्चे मकानात भी गिर चुके हैं। जी आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत सी फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। हमारा रास्ता बंद हो गया है। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ के अवाम मरीज इंतहाई परेशान है। बस्ती अबादुर्रहमान ने बंद को शगाफ, अहले इलाका में खौफ की लहर दौड़ गई। राजनपुर में दरियाए सिंध में 5,85,000 क्यूसेक का बहाव है। लोगों की अपनी मददाब के तहत नकल मकानी जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ गजा पर इस्राइली हमलों से शहादतें और तबाही की दास्तान है, तो दूसरी जानिब गैर कानूनी यहूदी आबादकार मजहबी रसूमात के तहत नाचते और गाते मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहे हैं, जिससे कशीदगी में इजाफा होगा। वाज़ेह रहे, इसराइल के गजा पर हमले से अब तक 6 मासूम बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इसराइल की फ़लस्तीन पर फिर वहशियाना बमबारी का तीसरा रोज़। 6 बच्चों समेत अब तक 32 अफराद शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में सह्यूनी फोर्सेस ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। रात गए कार्रवाई में इसराइली तैयारों ने गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बना डाला। इसराइल के फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमले, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इसराइल की फ़लस्तीन पर फिर वहशियाना बमबारी का तीसरा रोज़। 6 बच्चों समेत अब तक 32 अफराद शहीद हो गए, 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए। गजा में सह्यूनी फोर्सेस ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। रात गए कार्रवाई में इसराइली तैयारों ने गजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इसराइल के फ़लस्तीन पर फ़ज़ाई हमले, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इस्लामी ताउन तंजीम के मकबूजा कश्मीर के बारे में बयान पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा का मज़ीक़ा खेज़ तबसरा। पाकिस्तान ने OIC बयान पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के तबसरे को मुस्तरद कर। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का तबसरा मज़ीक़ा खेज़, दावे झूठे और काबिल मज़म्मत हैं। तर्जुमान ने कहा, हिंदुत्व के लिए काम करने वालों का तासुब का इल्ज़ाम हैरान कुन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।